स्टूडेंट्स साइंस स्टूडियो चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ CBSE ਦੇ ਲਈ ਲੈਸਨ 11th ਹੈ ਦ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਡ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ 10th ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸਿਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਫॉर एग्जांपल कैमरा है ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह लें माइक्रोस्कोप है ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੈਕਟੇਕਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਦੇ ਵਰ ਮੈਨ ਮੇਡ, ਓਕੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਯੂਜ਼। ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। that is our eye, human eye। जो साडी आँख है that is a natural optical instruments, okay। और वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ਦੇ प्रिंसीपल ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। पर ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਲੈਂਸ ਹੈ that is also convex lens and that is a natural convex lens, जो natural convex lens है, okay। और ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ natural convex lens ਹੈ that is also made up of totally transparent living material, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਪਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਟੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਈ ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਆਈ। ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਉਂਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੀ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆਈ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। डबल लेयर्ड है, और जो मेन पार्ट्स ने आई थे, जो आई दे मेन पार्ट्स ने
सब तो पहला जो आउटर मोस्ट पार्ट है, दिस इज नोन एज कॉर्निया, ये बड़ा पार्ट। कॉर्निया जिहड़ा है दिस इज टोटली ट्रांसपेरेंट पार्ट। ओके, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिहदे विचों साडी अख दे विच जो लाइट है उसने एंटर होना। ओके, सो लाइट जिहड़ी साडे अख दे विच एंटर हुंदी आ वो कॉर्निया दे थ्रू एंटर हुंदी है। ओके, उस तो अगे अगर आप थोड़ा अगे चलिए तो आ जी स्ट्रक्चर है, मैं डबल लेयर बनाता आ रहा, इतों असी थोड़ा जिहा इहनूं अंदर नूं प्रोजेक्ट कर लेना। ये मैं देखो दोनों अंदर नूं थोड़ी स्ट्रक्चर नूं प्रोजेक्ट कर लिया। दिस इज नोन एज आयरस। ओके, और ये भी आयरस है तो बेटा ये भी आयरस है ऑन बोथ द साइड्स। जेडे ये विचली जगह है, विचली ओपनिंग है, दिस इज नोन एज प्यूपल। ठीक है, सो कॉर्निया तो बाद अगली स्ट्रक्चर हो गई आयरस, थर्ड स्ट्रक्चर हो गई प्यूपल। ठीक है, देखो पंजाबी दे विच कॉर्निया नूं कॉर्निया ही कहंदे आ, आयरस नूं आयरस ही कहंदे आ, प्यूपल नूं आपां पंजाबी दे विच पुतली कह सकते हैं। ओके, उस तो नैक्सट इत्थे आपां एक स्ट्रक्चर बनानी है जिहड़े कुछ साडे दोनों साइड्स ते on this side, these are ciliary muscles, ये भी है। ओके, और अगर आपां इस तो नीचे जाइए तो इस तो नीचे सानू जो स्ट्रक्चर नजर आएगी दैट इज ऑफ लेंस। जिहड़े आपां लेंस की गल कीती है पहला कि आपां कहने आ इहदे पिछे आयरस दे पिछे एक लेंस है। ओके, और दिस लेंस इज इहनूं आपां आई लेंस कह दिंदे आ और यह कन्वैक्स हुंदा। ओके, एक कन्वैक्स लेंस होंदा है, उत्तर लेंस होंदा जस्ट बिहाइंड द आइरस। ओके, और ये जिहड़ा आई लेंस है इहदे नाल कुछ लिगामेंट्स हुंदे आ, लिगामेंट दे नाल ये मसल्स नाल जुड़िया होया ऑन बोथ द साइड्स। ओके, ये जिहड़े मसल्स दे नाल जुड़िया होया इसी इहनूं सस्पेंसरी मसल्स कहते हैं। ओके, दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सॉरी लिगामेंट्स नाल जुड़ा होया। ओके, सिलरी मसल्स है ते सिलरी मसल्स तो आई लेंस जुड़िया होया बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये जिहड़े मसल्स है दे आर आल्सो अटैच्ड टू दिस स्ट्रक्चर आइरस। ओके, सो थर्ड तो बाद आप फोर्थ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैगी है दैट इज आई लेंस। ओके, उस तो बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस सामने बिल्कुल, दिस इज नोन एज रेटिना। रेटिना की हुंदा जिवें आपां देखो कैमरे की गल करते हैं ना, आपां कैमरा कहने कैमरा फॉर व्हाट पर्पज वी यूज फॉर फोटोग्राफी। ओके, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਸ ਹੈ, लाइट अंदर एंटर करती है, जो आप फोटो क्लिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा तो वो जी लाइट क्लिक करती है वो जी सामने वाली ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक। ओके, वो लाइट टकराती है और वह इमेज वापस कैमरे के जाता और जाके एक पुराने टाइम के फोटोग्राफ फिल्म होंगी सी, अजकल चलो मैमरी कार्ड आ गए। ओके, वो उपर जाके इमेज बन जाता। ओके, सो मतलब ये रेटिना जिहड़ा एक फोटोग्राफिक फिल्म के तौर पर काम करता, मीन कि जिहड़ी भी ऑब्जेक्ट सानू नज़र आती है वह इमेज है रेटिना से बनेगा, फिर सानू ऑब्जेक्ट जी नज़र आए। ओके, सो दिस इज फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट रेटिना। क्लियर? रेटिना तो बाद एक नर्व है, इनू असीं कह दिंदे ऑप्टिक नर्व, प्रकाश नस।
देखो आप गल करते हैं कि साडा ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी असी करते हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ओके, साडे ब्रेन तक मैसेज आना चाहिए तां ही आपां ਉਹਦਾ कोई रिस्पॉन्ड करांगे। सो ਜਿਹੜੀ भी ऑब्जेक्ट ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾय ऑप्टिक नर्व ਸਾਡੇ ब्रेन तक पहुंचदा। ओके, then we are able to see that object। अगर ऑप्टिक नर्व तक ऑप्टिक नर्व राही मैसेज साडे ब्रेन तक ना जाए then we cannot see the object, कि साडा ऑब्जेक्ट नजर ही नहीं आएगी। ओके, और रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जिथे मीटिंग पॉइंट है उत्थे एक पॉइंट हुंदा है, इहनूं असीं कह दिंदे आ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि अगर इमेज इत्ते बन जाए, अगर इमेज इत्ते बनना शुरू हो जाए दैन वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट, कि सानूं ऑब्जेक्ट नहीं नजर आएगी। ब्लाइंड मीन ब्लाइंड आपां कहने ब्लाइंड पर्सन है ना, पर्सन है मीन उन्हें दिखदा नहीं कुछ। सो इदां साडी हरेक दी अख दे विच ब्लाइंड स्पॉट हुंदा। ओके, सो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑप्टिक नर्व। सो ये एक्स्ट्रा है जो तुहानूं मैं दस्सिया ब्लाइंड स्पॉट बारे। अच्छा, एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੌਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਨ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, कि जो लाइट की इंटेंसिटी आ, जो लाइट की मात्रा आ, वो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो कोन सैल्स होंगे दे आर सेंसिटिव टू कलर। याद रखना, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन। ठीक है, कोन सैल्स इज फॉर कलर और रॉड सैल्स दैट इज फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये रेटिना दे विच दोनों टाइप दे लाइट सेंसिटिव सैल्स होंगे। ओके, और जो ब्लाइंड स्पॉट है दैट मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रॉड सैल्स ਤੇ कोन सैल्स बिल्कुल नहीं होंगे, दैट्स वाई इट इज ब्लाइंड। ओके, अगर इमेज बन रहा और ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ऑब्जर्व कर रहे हैं इमेज ਨੂੰ दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। और रेटिना सॉरी ब्लाइंड स्पॉट ਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर नो रॉड सेल्स एंड देयर आर नो कोन सेल्स। ओके, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰॉड सेल्स ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫॉर एग्जांपल ਆਇਲ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉड ਸੈਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੇ ਹੈਵ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰॉड ਸੈਲਸ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉड ਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ। ਓਕੇ, दूसरी गल करिए कोन सैल्स की। कोन सैल्स दे आर सेंसिटिव टू कलर्स। ओके, हुण एक कोन सैल है ये ज़्यादा एक्टिव कदों आ, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग ब्राइट लाइट। ओके, जो लाइट होएगी, डे हो या नाइट हो पर लाइट चाहिए। ओके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਖੜੀ ਆ, 3-4 ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪॉट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਈ ਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਆ, ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ। ਔਰ ਜੋ ਆਈ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਅੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ vitreous humor। ओके, उस तो अलावा अख दियां दो आपां लेयर्स बनाई हुई हैं, जिहड़ा बाहरली हुंदी है उहनूं बेटा कहंदे आ स्क्लेरोटिक, जिहड़ी अंदर वाली है दैट इज नोन एज कोरोइड। ओके, सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आई।
उस तो बाद अगर आप एक होर गल करिए, अगर आप अपनी अख देखते हैं ना, आप अख की गल करते हैं या मोहली स्ट्रक्चर जी अगले वाली स्ट्रक्चर है, अपन अख कितना नजर आती है, लाइक दिस इज राइट सेंटर के राउंड पोर्शन है ना, ब्लैक पोर्शन है बिल्कुल, और उन्होंने जो ध्यान नाल देखो तो बिल्कुल सेंटर च ना एक होर पोर्शन है छोटा जिहा राउंड, और बाहरले पोर्शन को ध्यान नाल देखो तुहानूं लगेगा कि इत्थे जिद्दां कुछ लाइन आ, ध्यान नाल देखो अगर, ठीक है। हुण ये जिहड़ा पोर्शन है बेटा दिस इज आइरस, और जिहड़ी बिल्कुल सेंटर च ओपनिंग है दिस इज प्यूपल। तो बाद फिर कॉर्निया तो है ही है, कॉर्निया ने विचों लाइट पास होनी है। हुण आ जिहड़ा आइरस है इन्हें अपने आप नूं एडजस्ट करना, इफ देयर इज ब्राइट लाइट आइरस एक्सपेंड कर दिंदा, पीपल का साइज छोटा हो जाता, अगर डिम लाइट है तो आइरस ने कॉन्ट्रैक्ट कर देना, पीपल का साइज बड़ा हो जाना। ये साडी अख ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि कितनी लाइट ब्राइट है, ओके। और ये आइरस के करके ही अख का कलर है, आप कहते हैं ना कई परसन है उन्होंने अख जी कालियां अखां है, कई कहते जी अपनी भूरियां अखां है, बिल्लियां अखां है, ओके, दैट इज ड्यू टू द आइरस। जी आइरस दियां स्ट्रीक्स बनिया हुई उन्हों का कलर होंगे डिफरेंट, ओके। उस तो इलावा आप कह दें कि ये अख के उपर साडे पलकां भी है, आई लीड्स आप कह दें ना, दे आर आल्सो हेल्पफुल, साडी अख को प्रोटैक्ट कर दी। अगर बाहर कोई हनेरी चलती है, हवा चलती है, बहुत सारे धूड़ कण उड़ रहे हैं, आप अखां बंद कर लेंगे, वो पलकां जिहड़ियां साडीआं जिहड़ी आईलिड्स है वो अखां दे उपर एक ढक्कन की तरह काम करदी, उन्हां दी अखां साडीआं असीं बंद कर सकते, ठीक है बेटा। अगर आप हुण आइरस ते प्यूपल दे मेन फंक्शनस दी एग्जांपल करिए तो आप देखते हैं, जिवें मान लो बाहर बड़ी ब्राइट लाइट है, बड़ी धुप दे विच है ना, और आप मूवी देखण जाने थिएटर दे विच, आप देखते हैं उदों की कंडीशन है आइरस ते प्यूपल की। ड्यूरिंग ब्राइट लाइट की हो रहा, ये जिहड़ा आइरस है, आइरस का साइज है ये एक्सपेंड होया है, किने एक्सपेंड किया है, सिलेरी मसल्स ने, और आइरस का साइज एक्सपेंड हो के जिहड़ा प्यूपल का साइज है ना बहुत छोटा होया हुंदा इन ब्राइट लाइट, ओके, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है। क्यों छोटा होंदा कि ज़्यादा ब्राइट लाइट अगर ओपनिंग ज़्यादा होएगी पीपल की तो ज़्यादा लाइट अख दे विच एंटर करेगी, उन्हें साडी अख नूं हार्म भी हो सकता, नुकसान भी हो सकता, ठीक है। इसलिए ब्राइट लाइट दे विच आ कंडीशन है। और जो आप हनेरे च जाने फिर मान लो थिएटर के अंदर एंटर किए, आप देखते हैं ना, महसूस करो कि सानू कुछ सैकेंड 15 20 25 सैकेंड सानू अंदर एंटर करके नज़र नहीं आता, बट आफ्टर सम सैकेंड जिहड़ा सानू हौली हौली सारा दिखना शुरू हो जाता। उदों की हो गया, उदों की हो जाता, हुण बाहर डिम लाइट है, उदों की हो गया, फिर अख नूं पता लग गया कि बाहर डिम लाइट है, उन्होंने फिर एडजस्ट किया, ये मसल्स ने फिर आइरस नूं वापस खिंच लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिता, पीपल का साइज फिर बड़ा हो गया। जब पीपल का साइज बड़ा हो गया फिर सानूं दिखना शुरू हो जाता, ठीक है। अगर आप उल्टी कंडीशन नूं कंसीडर करिए, मान लो आप हनेरे च बैठे हैं, उदों साडी कंडीशन आ हुई है, पीपल का साइज काफ़ी बड़ा है, और जदों आप फिर बाहर निकलते हैं, बाहर ब्राइट लाइट है, आप एकदम जो बाहर निकलते सारे आप की करते हैं, एकदम अपनी अख बंद कर लेंगे, अख के अगे हाथ कर लेंगे, जब सानूं ज़्यादा लाइट फील होती है, ठीक है। अगर आप सुते पे हैं और साढ़े एकदम लाइट जगाती जाए, उदों भी केवल लगता है सानूं अखां दे विच बहुत लाइट पई, उदों भी कंडीशन यही हुई है कि पीपल का साइज जिहड़ा बड़ा होया है। अगर बाहरों लाइट का सोर्स आएगा तो साडी अख च ज़्यादा एकदम एंटर करेगा, ठीक है, सानूं एकदम महसूस होएगा, ओके। उहदे नाल ये पलकां भी फिर काम करदियां, साडी पलकां भी बंद हो जांदियां, ठीक। मतलब प्यूपल ते आइरस जिहड़े आ ये साडी अख दे विच जिहड़ी लाइट एंटर हो रही आ उहनूं कंट्रोल करदे, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ते नैक्सट लैक्चर दे विच आपां जो डिफैक्ट्स है बेटा आई दे उन्हां बारे आपां डिस्कस करांगे। कई बार इमेज रैटिना ते नहीं बनदा, तो अगे पिछे बन जांदा, उहदे नाल अख दे विच कोई ना कोई दोष पैदा हो जाता, उहदे बारे आपां नैक्सट लैक्चर दे विच गल करांगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।